Assalamualaikum. We are the student of BS Economics and Finance third year. For our presentation, we got a topic of Forex market. I am Raheen Hafiz and today I am presenting you an introduction of Forex market. So, Forex market is a global marketplace for buying and selling currencies. इस मार्केट को FX मार्केट भी कहा जाता है, करेंसी ट्रेडिंग मार्केट भी कहा जाता है। इस मार्केट में हम बहुत आराम से स्वैप कर सकते हैं किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी से। फॉर एग्जांपल US डॉलर को यूरोस से, दरहम को यूरोस से, US डॉलर को दरहम से। ये मार्केट 24 आवर्स ऑपरेट करती है एंड 5 डेज़ ऑफ अ वीक्स। 2 दिन ये ऑपरेट नहीं करती है, सिर्फ 5 दिन ऑपरेट करती है एंड 24 आवर्स काम करती है। ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पर हर वक्त ट्रेडिंग होती रहती है, मनी इनफ्लो आउटफ्लो हर वक्त चलता रहता है। Basically, the primary purpose of Forex market is to facilitate international trade and investments by allowing business investors and governments to convert one currency into another. If we talk about the history of Forex market, तो स्टार्ट में बहुत पहले के वक्तों की बात है कि जब कॉइन से ट्रेडिंग हुआ करती थी, कॉइन्स एक्सचेंज हुआ करते थे कंट्रीज़ के दरमियान। फिर 19वीं सेंचुरी में गोल्ड स्टैंडर्ड आ गया, जब गोल्ड से करेंसी को एक्सचेंज किया जाता था। एंड देन ब्रिटेन वर्ड्स एग्रीमेंट इन 1944, ये एक एग्रीमेंट था जो इंट्रोड्यूस हुआ, और इसके बाद इसमें US डॉलर से करेंसीज़ को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन ये वाला सिस्टम भी 1971 में ख़त्म हो गया और फिर एक मॉडर्न सिस्टम आया in 1971. The US abandoned gold backing, leading to today's floating exchange rates, where currency values fluctuate based on market forces. Now we talk about the participants. इसमें कुछ participants होते हैं, हर कोई participate नहीं कर सकता है। कुछ persons हैं as per foreign exchange management जो foreign exchange market की dealing में participate कर सकते हैं। And these are banks, foreign dealers, brokers, central banks, इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स। ये सब ऑथराइज पर्सनस हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट डीलिंग कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फर्स्ट फंक्शन इज़ करेंसी कन्वर्जन. Currency conversion enables international trade and investments by allowing currency exchange. The second function is facilitating international trade and investments. It supports global business by providing exchange rate stability from importers and exporters. The third function is hedging. It helps businesses and investors protect against currency risk by locking in exchange rates. The fourth function is speculation. It allows traders to profit from currency movements, increasing market liquidity. And the last main function is exchange rate determination. It sets currency values based on supply and demand. These functions are essentials for global economic stability and trade. That's it. Thank you so much. Now the next part will be represented by Marjan Qazi. My name is Marjan Qazi and the topic of my presentation is about the characteristic and the impacts of forex market. In the characteristic we may have the high liquidity, means that easily tradable and large volume you can buy and sell quickly. High trading volumes helps maintain stable prices. The market is open 24 hours and it's open continuously from Sunday evening to Friday evening. Currencies are traded in pairs, for example in USD or in euros. First currency is the base and second is the code. In the leverage, traders can control large position with a relatively small capital. Market participants include banks, corporations, governments and the individual traders. Price fluctuations can be significant, offering both opportunities and the risk. Impacts of forex market may include the exchange rate affects the trade balance and the import-export cost. Inflation. Currency values changes can impact price of goods and services. Investment flows affect foreign investment affecting local economies. The monetary policy. Central banks may adjust policies based on forex movements. Global trade impact competitiveness of nation in the global market. My name is Suhana and I am explaining you the types of forex market and how the forex market operate. तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट की 3 टाइप्स होती हैं जो कि स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट।
तो हमारी स्पॉट मार्केट में ये होता है कि एट अ टाइम जो है करेंसी वहाँ पे ट्रेड हो रही होती है, लाइक इमीडिएट डिलीवरी होती है विद इन अ 2 days या विद इन अ मिनट्स, विद इन अ सेकेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो है ट्रेडर्स बाय करते हैं 2 करेंसीज, PKR की करेंसी उन्होंने बाय कर ली और एक USD की, और एट अ करंट एक्सचेंज रेट जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है उसी पे वो ट्रेडिंग करेंगे, इमीडिएट ट्रेडिंग हो जाएगी, ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग। एंड द सेकेंड वन इज़ फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में जो है वो प्री एग्रीड रेट पे हम फ्यूचर डेट्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। लाइक आज मैंने सेट कर दिया कि जो है मुझे USD जो है मैं फ्यूचर के 6 मंथ्स में मैं 100 रुपीज़ में सेल करूँगी या लूँगी ना, तो वो 6 मंथ तक मैं 100 पे ही रहूँगी क्योंकि वो मेरी प्री एग्रीड रेट है। और द लास्ट वन इज़ फ्यूचर मार्केट, जिसमें एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय और सेल करने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करेंसी एट अ पर्टिकुलर या प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो फ्यूचर डेट में हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड कर रहे होते हैं जो फ्यूचर में उनकी प्राइस होगी। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। तो ये जो है एक नेटवर्क के थ्रू वर्क करती है जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट और रिटेल ट्रेडर्स को आपस में कनेक्ट करके और उनको अलाउ करती है कि वो अपनी जो है करेंसी आपस में ट्रेड करें, उन पार्टिसिपेट को फैसिलिटेट करती है। तो ये सारे जो भी गवर्नमेंट हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन वगैरह, वो मिलके अपने करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क है और ये पेयर्स में ट्रेड करते हैं। जैसे कोई भी 2 इलाकों की या 2 नेशंस की करेंसी आ गई, USD और PKR, या तो यूरोपियन करेंसी या तो USA की करेंसी, और ये 24 आवर्स अ डे जो है काम करती है इन डिफरेंट टाइम जोन्स में। ऑल टाइम आपको ये वर्किंग करती नज़र आएगी, लेकिन ये मंडे टू फ्राइडे काम करती है, सैटरडे संडे वीकेंड पे होती है, लाइक काम नहीं करती। खैर, और ये डिफरेंट जो है कॉरपोरेशन वगैरह को आपस में मिला के उनको अलाउ करती है कि वो ट्रेड करें, और इसकी प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है सप्लाई और डिमांड पे। लाइक जैसे डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पे असरअंदाज करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करती है ओवर द काउंटर थ्रू अ नेटवर्क्स ऑफ बैंक और ब्रोकर। तो ब्रोकर्स होते हैं जो ओवर द काउंटर इस मार्केट को रन करवा रहे होते हैं। तो जब एक पार्टिसिपेंट जो है वो बाय और सेल करता है एक चीज़, तो उसी टाइम दूसरा जो है वो दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर रहा होता है। लाइक एक ने USD ख़रीद ली और एक ने जो है PKR में ख़रीद लिया, और वो आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपनी करेंसीज़ को। और द लास्ट थिंग इज़ कि ये जो है ट्रेडर्स लेवरेज के थ्रू काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप लार्जर कैपिटल अर्न कर सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट की और आप 1 लाख को वो कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड कैसी जा रही है। अगर आपकी ट्रेड अच्छी जा रही है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर ट्रेड इज़ नॉट गोइंग गुड तो यू माइट बी गेट रिस्क। कि उसमें दोनों तरीके हैं कि आपको गेन भी मिल सकता है और आपको रिस्क भी मिल सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन हाउ द ट्रेड इज़ गोइंग। और ये फॉरेक्स मार्केट का की रोल है ग्लोबल ट्रेड में, जो कि ऑल ओवर वर्क कर रहा होता है पूरे वर्ल्ड में, और ये इंटरनेशनल लेवल मार्केट है जिस पे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है डिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नौमान खान एंड मेरा टॉपिक है करेंसी रेट फ्लक्चुएशन इन फॉरेक्स मार्केट। तो मैं आप लोगों से उसके बारे में डिटेल शेयर करूंगा। करेंसी रेट फैक्टर्स जो है वो काफ़ी चीज़ों की वजह से फ्लक्चुएट करती है, जिसमें से अगर हम प्राइमरीली देखें तो सप्लाई एंड डिमांड है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं इन डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगा, जैसे कि है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स GDP ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स की वजह से करेंसी को फ्लक्चुएट करती हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स क्या है? इंटरेस्ट रेट्स है सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं और उसका भी डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ता है करेंसी वैल्यूज़ पर। इसी तरह फिर हमारे पास थर्ड पे है मार्केट स्पेकुलेशन। अब मार्केट स्पेकुलेशन की वजह से जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ता है
फॉरेक्स मार्केट पर, क्योंकि उनकी वजह से करेंसी की जो मूवमेंट है वो फ्लक्चुएट करती है। फिर इसी तरह हमारे पास है ट्रेड बैलेंसेस। अब ट्रेड बैलेंसेस जैसे हर कंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये मोस्टली डिपेंड करती है एक्सपोर्ट्स पर। अब जैसे जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी उस कंट्री की करेंसी की उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी कहलाई जाएगी, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स की वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है, तो उस वजह से उनकी जो करेंसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसी तरह इन्फ्लेशन रेट्स हैं। अब जैसे जितना हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट होगा उतनी ज़्यादा उस कंट्री की जो करेंसी है वो उतनी ही वीक होगी। तो इसी तरह मैंने आप लोगों से इन डिटेल शेयर किया है ये 5 रीज़न्स जिसकी वजह से करेंसी रेट फ्लक्चुएट करती है। यहीं पे हमारा फॉरेक्स मार्केट का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हम चारों ग्रुप मेंबर्स ने आपके साथ फॉरेक्स मार्केट के डिफरेंट सब टॉपिक्स पे नॉलेज शेयर की है एंड होपफुली वो इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।